Hello students, good afternoon all.
Good afternoon, guys. So ठीक है, अपने last class में where we were doing good afternoon. Barometer. Okay, we have we have to complete that one ना, illustrations. हाँ, class illustrations का guys कहाँ तक था? First वाला हो गया था ना guys? Yes, Class so illustration. first one was done. We started with second ka first question also. Okay, हाँ. Now let us complete the illustrations first. Okay. So let us do the we have done na? Okay, now let us try second one. This will be second one. So what is the second question? Martha? So air bubble wala hai. Air bubble of radius 2 mm. Pura read karo sir. Okay. So, Yes. are you taking doubts today? No, illustrations. Oh, Last illustrations. All right. सर आप कौन सा वाला इलस्ट्रेशन करा रहे हो अभी? ये illustration 2 है, PDF 2. अच्छा अच्छा. Last illustration PDF 2. And second question we are doing. PDF 2, second question. Please try second question. So second question में guys, how will you do? Ayush, how will you do second question? So I'm not sure. Okay. Sir, So- we can use how we did with mercury, उसकी जगह बस mercury की जगह water use करके दोनों जगह पे pressure और फिर pressure एक बार मिल जाएगा तो उसे volume से relate करके आ जाना चाहिए. So Okay. we could do V1 at the surface and the bottom. Okay, बताओ, as the bubble moves up, उसका size will increase or decrease? Increases because pressure decreases. Good. So it will increase because pressure decreases. Okay. So this is a small. यहाँ पे का बड़ा drop किया है. हाँ. So first we have to go for kdg. भाई kdg में जो है, we'll use PV is equal to nRT. Moles of the gas constant. R constant, temperature constant. है ना? तो भाई ये वाला हिंट हो जाएगा इसके लिए. और दूसरा फ्लूइड्स का. With some नहीं okay, उसी ऑर्डर में will solve. हाँ,
You have done the second, third one. You'll have to complete. ठीक है. So guys, क्या हो जाएगा? P initial V, PV is constant. Gas law, इसका volume 4/3 pi R1 cube. This is P1. ये P initial, sorry, P initial and this is P final. और ये P final 4/3 pi R2 cube. तो आपको R निकालना चाहिए, R2 निकालना. P initial by P final क्यूब लेना है तो ये हट जाएगा. ओके. तो ये रिलेशन तो इससे आ जाता है. How will you find P initial and P final? So P final तो atmospheric pressure है और P initial P P0 plus atmospheric rho pressure GH. plus rho GH. P0 plus rho GH. Okay. P initial will be P final is atmospheric pressure और P initial is P0 plus rho GH. Okay. तो ये वाला P0 तो 10 to power 5 rho. यहाँ पे fluid involved is water 1000 into 10 into H. H कितना है ये वाला? 3.3 sir. 6.3. 3.3. So 3.3. Sorry 3.3. ये 10 to power 5 हो गया प्लस इसको लिख लेते हैं 0.3. 133 into 10 raised to 3. Sir? हाँ 1.33 into 10 to power 5. ओके. तो ये और ये सेम यूनिट्स में, इसको कोई सा यूनिट में रखेंगे चलेगा. तो जो ये यूनिट में होगा वही आंसर ये उसी यूनिट में आएगा. सर मास ग्राम में लेना है. मास का रिक्वायरमेंट तो है नहीं. सर आपने 10⁵ क्यूब किया है. मास कहाँ है? डेंसिटी है वो 10 क्यूब वाला. देखो ये वाला ऐसे- सॉरी ये ऐसा है. ये डेंसिटी इज 1000, G is 10, height is 3.3. Sir, Yes. Please tell. sir, ओ फाइनल वाला तो एटमॉस्फेयर पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 to power 5 सरफेस पे आ गया ना. सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. किसी का डाउट था प्लीज आस्क. पी इनिशियल समझ में नहीं आया. अरे पी इनिशियल ये वाला है. यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? P0 plus rho GH. P0 is 10 to power 5 rho GH. हाँ rho is यहाँ पे fluid involved is water 1000 into G into H. सर हाँ. सर फाइनल में 1.3 का क्यूब रूट कैसे, मतलब इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1.3 का क्यूब रूट क्या? हाँ सर 1.3 क्यूब रूट इंटू 2 इंटू 10 रेज टू -3 आंसर. पर इंटीजर टाइप में कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ मतलब हाँ ठीक है. फिर वो सर देना नहीं चाहिए 4/3 लिख सकते ना, 4/3 करके. क्यूब रूट तो नहीं पता. हाँ क्यूब रूट तो वैसे भी हाँ. नहीं पता, बट अप्रॉक्सीमेट ओके हाँ हाँ. तो बोल रहा है कि उस फॉर्म में देखिए इसको पूछ सकते हैं. हाँ सर. तो उससे हो जाएगा. हाँ मतलब वो लोग कैलकुलेशन नहीं चेक हाँ करेंगे. एकदम अप्रोक्सीमेट ले सकते फिर. ठीक है गाइस. थर्ड वाला करो सेकंड के बाद.
फाइनल आंसर, हाँ फाइनल आंसर इसका आ जाएगा ना। देखो ये रेडियस आपको ये कितना 2.2 दिया है ना। यस सर। दिस इज 2.2 और ये आपका जो है बस इन दोनों का रेशियो लेंगे 10 to the 5 कट जाएगा, बस ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा फाइनल। पूजा गॉट द सेकंड वन। सर 1.33 का तो क्यूब रूट 1.1 में Sir, आता है। sir, we're just going to do illustrations today, or are you going to teach something else afterwards? आज इलस्ट्रेशंस विल कंप्लीट क्योंकि कुछ अलग अलग सम्स है ना, फ्लूइड के भी कांसेप्ट मिक्स वाले हैं। Okay, sir. ठीक है, उसके बाद you're not going to teach anything, no? आज हाँ आज पूरा इलस्ट्रेशंस में लग जाएगा। Okay. Thank you, sir. तो दिस इज ये 2 mm है क्या? सर वो पीएफ और पी नॉट सेम कैसा है? पीएफ और पी नॉट नहीं, देखो फाइनल यहाँ पर है, यहाँ पर हाँ। सरफेस का सरफेस मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ सर, आप लास्ट पे एक बार रिपीट कर सकते हो, वो लास्ट में आपने क्या बोला? नहीं, फाइनली द बबल हैज कम टू सरफेस हाँ एंड at this point pressure is P naught atmospheric pressure। हाँ करेक्ट, अच्छा ओके ओके सर। सर वो हमने जब भी डिराइव किया था तभी इसको डिफाइन किया था ना, वो सरफेस पे आता है तभी वो प्रेशर पी नॉट होता है। यस सरफेस वाला पॉइंट एयर से Yes, एक्सपोज, sir. हाँ जो भी पॉइंट एयर से एक्सपोज्ड है वहां का प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक। पी नॉट ना यस हाँ सर, पी नॉट ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या थोड़ा? मतलब उसको उससे हमने डिनोट किया है P naught के ओके साथ। ओके ओके, थैंक यू सर। सर मुझे वो बस पूछना था कि रेडियस को हम लोग मीटर्स में कंसीडर नहीं करेंगे क्या? देखो जो है इसका ये और ये रेशियो। हाँ सर वो समझा सर, पर रेडियस को हम लोग 2/1000 नहीं करेंगे क्या? if you want to put it in meters then you can do it। ओके सर, सो ये फाइनल स्टेटमेंट नहीं है ना ये mm में आएगा ना। सर? पर मीटर में आना चाहिए था ना। okay that we have to see the options। ओके सर। हाँ हाँ तो इंटरनल एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है मतलब थर्ड क्वेश्चन के लिए, उसमें आर ऐसा यूनिट्स में लेना है कि 0.0821 लेना है? नहीं ऐसा यूनिट्स जूल्स में रख रहे हैं हम पूरी एनर्जी। ओके सर। Guys, I will erase this one if everybody has copied। जिष्णु ये वाला हो गया। शिवांश डन ना ये वाला? ओके यस guys ये वाला थर्ड वाला इससे Sir? होगा ना। हाँ So today you will do the class illustrations only? यस आज पूरा क्योंकि हाँ जो हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था ना फ्लूइड्स सबके मिक्स टर्म्स Okay, okay. वो वाला कर लेते हैं।
Niharika, third one you got? Yes, sir. Okay, you're doing fourth one. हाँ, just starting. Okay. सर ये सारे क्वेश्चंस में आर का क्या वैल्यू लेना 0.081 R या SI units रखते हैं. Let us go by SI units. 25/3 या 8.314. ओके ओके सर. हाँ. सर वो आपने इसमें भी पी को वो केटीजी का जो पोस्टुलेट था कि वो इंटरेक्शन नहीं होता है मॉलिक्यूलर, उसके वजह से हटाया गया पी को. करेक्ट. ओके. और सर थर्ड के बाद आप ओके. हाँ, मतलब ये वाला 12 दिया ऐसा बोल रहे हो? मतलब इससे तो आ जाएगा ना. सर थर्ड के बाद कौन सा करना है? 4. ओके. मोल्स के लिए ओके 0.04 डिवाइड बाय 4. एक्सक्यूज मी सर. हाँ. सर हमें अभी आगे के सारे क्वेश्चंस ऑर्डर में ही सॉल्व करने हैं ना? यस. ओके थैंक यू सर. इससे आंसर कितना आ रहा है? डेल्टा डी बताओ कितना आ रहा है यहाँ पर. So 196 degrees. 96. Okay. So T final is T initial plus delta T. Yes sir. 100 plus 96. Okay, Palash. डेल्टा यस. हाँ, पहले डेल्टा फिर उसके बाद टी फाइनल हो जाएगा. हाँ, इनिशियल प्लस डेल्टा. I will erase this one. तो एक इलस्ट्रेशन में ही है आप गिवन गाइस एक बैरोमेट्रिक फॉर्मूला जैसे वेरिएशन ऑफ प्रेशर एयर में, वो इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स में ही है, तो वो वाला भी कवर हो जाएगा. वो लास्ट में थोड़ा टफ है. अभी लाइन में ही करना है ना? यस. हाँ, प्लीज डू इट. ओके. अभी यू आर डूइंग फिफ्थ वन ना? यस सर. ओके. फोर्थ वन. सर आपने क्वेश्चन 4 नहीं किया. ओके. आई फोर्थ वन. सर ये क्वेश्चन 4 में उन्होंने बोला है कि वो एडिशनल लॉ फॉलो करता है PV² इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का, पर उसको उसको P को उधर हम NRT by V से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना? यस, बिकॉज़ वो आइडियल गैस भी तो है. अच्छा, तो सर वो ओके. डायग्राम फॉर फिफ्थ. एक मिनट जाओ पहले. डायग्राम फॉर फिफ्थ क्या? ओके, डायग्राम फॉर फिफ्थ में शायद ऐसा है.
एक सिलेंडर. Sir, Yes, Ayush. so can you give us some time for question 5, please? Diagram I'm drawing, just diagram. Yes, sir. Okay, sir. हाँ, just diagram. वैसे डायग्राम तो नहीं दिया था ना. Why you are asking diagram? गाइस इसका बताओ फोर्थ का, फिर उसके बाद कैसे करना है. So you put P as nRT by V in the first equation. Okay. And so it's all done. V and V will get cancelled first, sir. Okay. NR constant है. हाँ, V and V Yes, cancel. sir. So you have TV is equal to constant. Yes, sir. So volume increases. So temperature has to decrease. Bunch, यही डाउट था ना तुम्हारा. देखो ना, P की जगह he substituted nRT by V. NR constant है, V cancel कर लिया, तो he got T into V constant. तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा. सर एयर की डेंसिटी क्या लेनी है? एयर का डेंसिटी नहीं रिक्वायर्ड तो नहीं. ऐसे एयर का डेंसिटी बहुत कम होता है, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है इस प्रॉब्लम में. ओ नहीं रिक्वायर्ड है. अच्छा. Yes. Niharika, what will be the concepts, main concepts क्या यूज होंगे? Just tell. सर कौन से वाले में, फिफ्थ या फोर्थ? फिफ्थ वाला. सर फिफ्थ वाला मेरे को नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको एयर डेंसिटी पूछ रही थी. मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो उसमें यूज होगा. सर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस मर्क्यूरी प्रेशर ऐड कर लो, आ जाएगा. Okay. So main concepts अगर कि if I ask you, Abhishek, what are the main concept you are using? सर वही नॉर्मल एडिशन ऑफ प्रेशर जो अब तक करता है, बबल पे से किया था ना हमने. हाँ, एक तो हो गया वही. वेरिएशन प्रेशर. हाँ, and what will be the second concept? और कौन सा कंसेप्ट? चैप्टर नेम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. उसका भी कोई कंसेप्ट यूज हो रहा होगा नहीं क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा. नहीं हो रहा. Okay. Yes, नहीं, मोल्स कंजर्व, टेम्परेचर कांस्टेंट. सर फोर्थ वाले में इसके बाद इंटीग्रेशन करना होगा ना? फोर्थ वाले में तो आ गया ना यार. वॉल्यूम जो है यू हैव डबल्ड, सो टेम्परेचर विल बी हाफ. हाँ सर, उसमें टेम्परेचर आप कांस्टेंट लेके कर सकते हैं. वैसे एडिशन ऑफ प्रेशर तभी तो पॉसिबल है. एटीसी रख टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, फिर मोल्स कंजर्व, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ना. PV कांस्टेंट, ATG का कांसेप्ट. यस सर, बॉयज लॉ. यस. और बॉयज लॉ इस गैस पे अप्लाई होगा. ये वाला हो गया ना, ये वाला एक्सपोर्ट पार्ट. Jishnu, how are you doing fifth one? Sir, still thinking, sir. Okay. सर रो की सच्ची जरूरत नहीं है. Listen again. Row of air is not required. अच्छा, ओके सर. So, Arshitanshu, how you do fifth one?
This is the initial and this is final. ये air का हाँ सर फिफ्थ वाले में अच्छा नहीं, अब आप ठीक है yes हाँ please tell. सर पी एफ वी एफ इक्वल टू पी आई वी आई करके पाई आर स्क्वायर एच करके वैसे जैसे एयर बबल वाला किया था. Wait हाँ PF is equal to PI/VI and what you like PI? PI is 75 centimeters of atmospheric pressure. Rho G 75. Rho mg 75. और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर एच. या फिर इसको A बोल देते हैं ना, पाई आर स्क्वायर थोड़ा सा लंबा ले दिया जाएगा तो A इंटू ये वाला लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर. 100. अब फाइनल लिखना है भाई. यहाँ का प्रेशर पता है P नॉट है. यहाँ तक पहुँचना है तुम्हें. अब ये वाला लेंथ को कुछ बोल लो भाई, है ना. इसको x बोल देते हैं क्या? तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द मरकरी चाहिए तो इसको x बोल लो. ठीक है. हाँ यहाँ का प्रेशर P नॉट है. यहाँ का प्रेशर क्या होगा? फ्लूइड का कंसेप्ट रो जी एक्स. हाँ नहीं, दिस प्लस रो जी एच. तो P नॉट प्लस S. Yes, I thought I was talking. P नॉट प्लस रो एम जी एच एक्स. हाँ Yes, तो sir. सर अभी वो बॉयज लॉ. हाँ अब फाइनल प्रेशर की जगह व्हाट यू राइट? P नॉट प्लस रो एम जी एक्स एंड वॉल्यूम की जगह So 100 minus x into A. Yes, sir. A into 100 minus x. ओके भाई. P नॉट को लिखेंगे रो एम जी 75. सर लेकिन रो एम जी लिखने से अच्छा बस 75 ही लिख दो. हाँ हाँ अरे कैंसिल कर देंगे ना. रुको वेदांत. अच्छा ओके ओके. वो तो वो दैट वो वाला जो है वो कैंसिल आपके माइंड में होना चाहिए ना. मैं इसको लॉन्ग स्टेप लिखूंगा. ओके ओके सर. रो एम जी 75 इंटू A इंटू 100. अब जो है देखो गाइस, इसको ऐसा भी लिख सकते थे. प्रेशर को यहाँ पर 75 ऑफ मर्करी, सॉरी ये 75 ऑफ मर्करी, P इंटू V कॉन्स्टेंट. हाँ वॉल्यूम को A इंटू 100. बाकी सब कैंसिल होने वाले हैं देखो. और फाइनली प्रेशर क्या होगा? 75 प्लस x और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 100 माइनस. बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे देखो यहाँ से, और यही बचने वाला है. Aditya, you got the answer. This one, same thing ना? सर यहाँ पे डायरेक्ट मर्क्यूरी के फॉर्म में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू दिया है तो फिर हम डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते थे. कर सकते थे. सब रो एम सब लिखने का जरूरत नहीं है. करेक्ट. हाँ करेक्ट. सेम किया, वही किया मैंने. जैसे as you said ना 75 प्लस x और ये पूरा 75 है और ये इसमें प्रेशर 75 का है या इसमें 75 प्लस x का है? 75 प्लस x. इसका वॉल्यूम 100 है, इसका वॉल्यूम इज 100 माइनस x. This is what you're saying, right? Okay. भाई इसको सॉल्व करो. कितना आएगा? x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? x की वैल्यू इधर क्वाड्रेटिक ओपन करना पड़ेगा या फिर हिट एंड ट्रायल से देख के कुछ बन सकता है क्या? यस 25 सेटिस्फाई करेगा ना? हाँ ठीक है. हाँ सेटिस्फाई कर रहा है. यस सर आप एक और बार RHS एक्सप्लेन कर सकते हो सर? श्योर. हाँ देखो RHS मतलब जो है इनिशियल वाला साइड. इनिशियली द प्रेशर इज P नॉट. तो P नॉट इज रो mg 75
initial volume is area into length, और length is 100, this into this हो गया. Understood? Yes sir, yes sir. Thank you sir. इससे हाँ, इससे आंसर जो आ रहा है इसका आंसर x की वैल्यू 25 आ रही है. Sorry. fluids plus KTP. Six में yes हाँ. इसी वाला कॉपी कर लिया सबने. So wait. Okay. सर आंसर गलत है क्या 6 का? इसमें देखो देवांश if you pour more mercury, नहीं मैक्सिमम इतना है ना, और ज्यादा करोगे तो फिर स्पिल ओवर हो जाएगा. हाँ, it will fall down side. तो वही पूछा है कितना मैक्सिमम डाल सकते हो उस पे. वेदांत 6 का सर ट्राई 6 करो. का आंसर अलग आ रहा है जो दिया है 33 उससे. है सर, मतलब 33 रॉन्ग है, 15 आ रहा है. हाँ सर मुझे भी 15 आ रहा है. 6 का क्या, एक दो पहले बाकी सबको ट्राई करने दो, आगे बढ़ो. हाँ सर. ओके. सिक्स का रॉन्ग आ रहा है. ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कब ऐसे आ रहा है फिर रॉन्ग होगा. निहारिका कॉपी दिस वन. Yes sir. So मुझे भी 6 का 15 ही आ रहा है. 6 का क्वेश्चन क्या था? प्लीज टेल द क्वेश्चन अगेन. A uniform tube closed at one end contains a pallet of mercury 10 centimeter long. Got the question. Okay sir. इसमें जो है when the tube is kept vertically with the closed end upward, पहले closed end ऊपर ऐसा, closed end ऊपर, और जो है contains a pallet of mercury of 10 centimeter. तो ये mercury pallet is 10 centimeter. This is open to atmosphere, तो यहाँ का pressure P naught. और there is a air trap. यहाँ पे air trap है. Now what they are doing is the length of the air column trap is 20 centimeter. Okay, this length is 20 centimeter. Now you are filtering. So find the length of the air column trap when the tube is inverted so that the closed end goes down. Closed end क्या है? मर्क्यूरी का तो ठीक है, यही वाला 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे ये एयर से एक्सपोज्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट. ये लेंथ इज सम एक्सटेंट. तो पहले इसमें जो है गैस का प्रेशर निकालना होगा. यहाँ पे गैस का प्रेशर निकालने के लिए यहाँ पर जो प्रेशर विल बी P नॉट विल बी रो एम जी 75 कितना दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 ना, तो 75 ध्यान दिए. और when you go above the liquid में ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा. यहाँ का प्रेशर विल बी रो एम जी 65 as you move 10 सेंटीमीटर अप, है ना. यहाँ का प्रेशर
तो यहाँ का प्रेशर कैसे निकालोगे? क्या जाएगा? P नॉट माइनस रो एम जी 10, P नॉट है ना, रो एम जी 75 माइनस रो एम जी 10, ये हो गया रो एम जी 65। सर हाँ सर डायग्राम उल्टा नहीं होगा क्योंकि they have given earlier that the this when the tube closed and this keep is kept this at the top, तो mercury के नीचे वो एयर कॉलम आना चाहिए ना, या we are considering it to be above? क्लोज्ड एंड अपवर्ड, क्लोज्ड एंड जो है ऊपर है हाँ और ओपन एंड नीचे है। सर तो mercury के नीचे क्या है? नहीं, मरकरी के नीचे एयर है, मरकरी ऐसे बीच में फंसा हुआ है, जैसे स्ट्रॉ में कोल्ड ड्रिंक फंसा हुआ है, ऐसा टाइप्स का। सर तो ऐसे तो नीचे 20 सेंटीमीटर होना चाहिए ना, आई गेस। But the air is trapped, ना? एयर इज ट्रैप्ड मतलब जो है बाउंड्रीज के बीच में होगा, ट्रैप बिटवीन मरकरी एंड द ट्यूब। ये ट्यूब हो गया और ये मरकरी हो गया। ओके सो अच्छा ओके ओके ओके, मैं उसे टेस्ट ट्यूब इमेजिन करने लगा, सॉरी सर सॉरी। ओके एंड दिस इज P नॉट। अब यहाँ का प्रेशर P2 विल बी, P2 क्या हो जाएगा? P नॉट प्लस रो एम जी 10, रो एम जी 85 आएगा। हाँ ये अलग कितना हो गया? रो एम जी 75 प्लस रो एम जी 10, तो P2 विल बी रो एम जी 85। अब ये तो फ्लूइड का कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ KTG, मोल्स ट्रैप्ड, मोल्स कंजर्व, टेम्परेचर कांस्टेंट, PVs NRT। PVs NRT में ये कांस्टेंट P1 V1 इक्वल टू P2 V2, PF VF इक्वल्स PI VI। यहाँ पर दिस इज इनिशियल केस एंड द प्रेशर हियर इज which is the same as pressure of the gas, रो mg 65, ये वाला 20 और फाइनल ये वाला ओके क्या होगा? रो mg 85, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A into x, A into 20, A into x। तो फाइनल आंसर विल बी 85 into x is 65 into 20। इससे x की वैल्यू कितनी आती है? सो 15 पॉइंट समथिंग आते हैं, पर राउंड ऑफ करके 15 कंसीडर कर सकते हैं। ओके So, यस हाँ yes. sir, can you please explain this question again? हाँ श्योर। यहाँ पर जो है इनिशियली द एयर इज ट्रैप्ड इन दिस रीजन बिटवीन द ट्यूब एंड द मरकरी, ठीक है, और ये क्लोज्ड एंड ऊपर है, ओपन एंड खुला, ओपन एंड जो ओपन है ये वाला, यहाँ का प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक। एज पर द कांसेप्ट ऑफ फ्लूइड, इफ यू गो अबव प्रेशर विल डिक्रीज। कितना हो जाएगा? P नॉट माइनस कितना ऊपर गया? रो एम जी 10। P नॉट इज रो एम जी 75 माइनस रो एम जी 10, दिस विल बी रो एम जी 65 विल बी यहाँ का प्रेशर, विच इज सेम एज द प्रेशर ऑफ द गैस। Yes, sir. हाँ इन द सेकंड केस क्या होगा? ये ओपन एंड है, यहाँ का प्रेशर इज P नॉट, यहाँ का प्रेशर P नॉट है, ये 10 सेंटीमीटर है। नाउ यू आर कमिंग बिलो, हाँ अंदर आ रहे हो लिक्विड में, तो क्या होगा? प्रेशर विल इंक्रीज, तो P नॉट प्लस रो एम जी 10, P नॉट इज रो एम जी 75, 10 नीचे आ रहे हो तो प्रेशर विल इंक्रीज। यहाँ का प्रेशर आ गया P2 which is same as the pressure of the gas, so this becomes rho mg 85. Now KTG concept, PV is NRD, moles constant, temperature constant, so this is constant, so PV is constant, which implies P1 V1 equal to P2 V2. Initial pressure of the gas, this is rho mg 65, volume is area into length. Finally pressure is rho mg 85, volume is A into this length x. Now this all will cancel out, we'll get 85 into x is 65 into 20. Now we have to solve. Yes, sir. Understood, sir. Thank you.
सो आप Yes, sir. क्वेश्चन 7 का बता सकते हो? मेरे को उसमें वो नहीं समझ आ रहा, वो इक्विलिब्रियम में कब आएगा? Okay, okay. Question 7 का what is the starting statement? क्वेश्चन पढ़ो सर. Yes, sir. A cylindrical tube of length 30 centimeter is partitioned by a tight fitting separator. सर इस क्वेश्चन में हम एनआर को कांस्टेंट मान के दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं. करेक्ट करेक्ट, हाँ मोल्स कांस्टेंट रहेगा. ओके ठीक है. ओके हाँ एक मिनट. हाँ यहाँ इसको प्लीज कॉपी दिस वन. None, sir. Copy, sir. वेदांत डन ना. ठीक है गाइस, उसके पहले आई विल आस्क वन मोर क्वेश्चन. एक मिनट. हाँ इसमें अगर मान लो जो है ठीक है ठीक है बाद में एक हाँ क्वेश्चन ऐसा है. वन मोर एग्जांपल. निहारिका विल कम टू द क्वेश्चन. हाँ एक Okay, sir. तो इसमें नेक्स्ट दिस क्वेश्चन जस्ट एग्जांपल लेकर दे रहा हूँ. इसमें यू आर गिवन दैट कि जो है ये ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर. Atmospheric pressure is 76 centimeter of mercury. Your mercury column is 20 centimeter, and this trapped air column, your air which is trapped, ये दिया हुआ है 43 centimeter. फिर the tube is tilted slowly in a vertical plane to angle of 60 degrees. इसको 60 डिग्री टिल्ट कर दिया. और ये वाला जो है ये एज इट इज है ऐसा. ये 20 है सेम. हाँ ये इनिशियल, दिस इज योर इनिशियल, दिस इज फाइनल, और ये 60 डिग्री टिल्ट कर दिया. ये 20 सेंटीमीटर तो है ही नहीं. अब ये वाला x, फाइंड x. टेम्परेचर कांस्टेंट. सर हाँ सर इसमें हम वैसा कर सकते हैं क्या? 20 into 43 is 20 into x, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? लेट एवरीबॉडी ट्राई. बाकी लोग को भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. हाँ सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है. ओके सर. अंशुल कितना आ रहा है तुम्हारा? करेक्ट. ठीक है अंशुल. हाँ करेक्ट आकाश. आयुष इसमें नो, फिर से ट्राई करो. हर्ष नहीं. फिर से ट्राई करो हर्ष. देवांश नहीं. ट्राई अगेन. यस शिवम करेक्ट. नो 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 सर नो. हाँ सर वो ऊपर से जो
कंटेनर है वो टेस्ट ट्यूब नहीं तो कंटेनर है वो ओपन है। यस यस, यहाँ भी ये वाला भी ओपन, ये वाला भी ओपन है। अच्छा, और वो 20 सेंटीमीटर वाला वो मर्क्यूरी है। यस विनय, हाँ हाँ, यस ये मर्क्यूरी है, अच्छा, ओके ओके सर। ये मर्क्यूरी है। हाँ, शिवांश करेक्ट, करेक्ट शिवांश। करेक्ट ऋतुजा, हाँ करेक्ट, गुड गुड गाइस, गुड विनय, करेक्ट। सर ऐसा क्वेश्चन बीजेसीएच सर ने हमको दिया था। ओ ये वाला, ओ यू आर डन, ऑलरेडी डन। या हाँ सर। ओके, तो ये हाँ, गैस गैस फर्स्ट दो कंसेप्ट ना, फ्लूइड्स एंड पीडीजी। ये क्या यहाँ पे क्या है, रो एम जी 76, तो यहाँ पे प्रेशर नीचे आएंगे तो प्लस रो एम जी 20, यहाँ का प्रेशर विल भी क्या हो जाएगा, रो एम जी 96 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो यहाँ पर भाई हमने डिस्कस किया था फ्लूइड्स में दो पॉइंट्स के बीच का कौन सा डेप्थ चाहिए होता है, वर्टिकल वाला, ठीक है। तो ये वाला एंगल 30, ये वाला एंगल 30, दिस 20, दिस विल बी 20 sin 30, which is 10, तो वर्टिकल डेप्थ 10 का हुआ। यहाँ पे क्या है, रो एम जी 76 है, तो यहाँ पर वर्टिकल डेप्थ ना 10 होने के कारण यहाँ का प्रेशर विल बी रो एम जी 76 प्लस 10, 86, ठीक है। अब तो ये क्या हो गया, ये वाला जो है इनिशियल, यस वेदांत, हाँ सर आंसर बोल सकते हो 48 है क्या? यस करेक्ट, हाँ ओके सर, थैंक यू। गुड। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, रो एम जी 96 सेंटीमीटर एरिया इंटू लेंथ is equal to rho mg 86 centimeter area into x. So 96 into 43 is 86 into x. तो यहाँ से जो है राउंड कर दिया क्या, 248, ओके गाइस नेक्स्ट, हाँ फिर नेक्स्ट वो इलस्ट्रेशन तो ट्राई करो नेक्स्ट। यस हमें यस, हाँ वो x जो फाइंड आउट करना था वो टेढ़ा वाला लेंथ फाइंड करना था या वर्टिकल वाला? नहीं, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, ये वाला लेंथ, ओके, मतलब स्लैंट वाला है ना? हाँ पूरा, हाँ जिसमें सर पूरा, हाँ सर वो आपने रिजॉल्विंग से क्या क्या मतलब किया है वो एक बार बता सकते हो, एग्जैक्टली क्या देखो ढूंढा है? देखो, नहीं देखो हमने क्या था, जो हमने फ्लूइड्स में पढ़ा था कि P2 is P1 plus rho g h, h is vertical separation, हाँ तो हाँ लिक्विड के दो पॉइंट्स के बीच का वर्टिकल सेपरेशन चाहिए, ये और ये इसके बीच का प्रेशर के लिए वर्टिकल सेपरेशन चाहिए होता है h, हाँ हाँ ये 20 है ना, ये 20, ओके तो ये वाला 20 का साइन 30 हो जाएगा, हाँ करेक्ट। तो वर्टिकल सेपरेशन 10 हो जाएगा। अच्छा तो सर फिर हमने उसको यूज कैसे? हाँ अरे भाई यहाँ का रो एम जी 76 है, तो यहाँ से हाँ इंक्रीज 10 का इंक्रीज होगा तो ये होगा रो एम जी 86। अच्छा अच्छा ओके, थैंक यू सर। हाँ सर समझ। ठीक है गाइस, आई विल इरेज दिस वन। यस सर। अब हाँ 7th वाला करो जल्दी, क्या गिवन है, हाँ मर्करी जो है 20 सेंटीमीटर है, तो 7th वाला क्या दिया है, सिलेंडर जो है, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, 50 सेंटीमीटर,
left side, right side. Partition by a tight fitting separator. The separator is conducting and can carry three side ideal gases, two parts. In the beginning, the temperature of A and B are 400 and 100. Okay, 400 Kelvin, 100 Kelvin. The separator is okay. It is a conducting, तो क्या होगा? Conducting होगा, तो फिर ठीक है. In the beginning, the separator slides to a momentarily equilibrium position. Okay, equilibrium position जो भी है, से अगर initial pressure P1 इस side है, तो equilibrium position ये भी P1 होगा. Okay. Find the final equilibrium position. Okay. Final equilibrium. Find the final equilibrium position. ले लेते हैं ये x 30 minus x. Final equilibrium position में again pressure is P2. Temperature equilibrium है ना, T same रहेगा. तो यहाँ और यहाँ के बीच में हाँ अभी एज रुद्र एक बार सेटिंग ना कि मोल्स कंजर्व कर. हाँ सर हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, x की फाइनल वैल्यू. टेम्परेचर. मोल्स लेफ्ट साइड का. ओके सर हाँ सर वो कुछ कनेक्टिविटी है क्या पहले कंटेनर और दूसरे कंटेनर में? अभी ये तो स्टेट है, ये वाला इनिशियल स्टेट और ये वाला फाइनल स्टेट. अच्छा सर, तो आपने वो 2 लाइन क्या दिखाया बीच में? ओ नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि इनिशियल लेफ्ट साइड का इनिशियल और फाइनल मोल्स कंजर्व कर रहा हूँ. अच्छा ओके सर. लेफ्ट साइड का इनिशियल और फाइनल मोल्स कैसे लिखेंगे? मोल्स ना हाँ तो ठीक है. P1 वॉल्यूम R into RT और यहाँ के मोल्स क्या हो जाएंगे यार? यहाँ पर P2 वॉल्यूम को A into X R into T. राइट साइड में भी लिखना पड़ेगा. राइट साइड का भी मोल्स कंजर्व करोगे. P1 A into N R into 100 P2 A into 30 minus X R into T. और तो कुछ दिख नहीं रहा इसमें. ये सब सॉल्व कैसे होगा ये वाला? क्योंकि जब हीट तो तब तक ही कंडक्ट होगा. ओके हाँ एक के नीचे एक लिख के डिवाइड कर देते हैं. ठीक है हाँ P1 by P2 करेक्ट. P1 A10 upon R100. यस P1 by P2 का रेशियो निकाल के उसको इक्वेट कर सकते हैं, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे. हाँ P1 by P2 या फिर मैंने इसको ऐसे लिखा और डिवाइड कर दिया. That's also. ठीक है P2 by R P2 by R P by P. वैसे इससे देखो क्या आता है फिर आंसर. सर 10 आया, सही आया.
फिर से आ रहा है इससे। हाँ सर। सर यस हम सर मैं थोड़ा सा अलग मेथड ट्राई कर रहा था, तो मैं फाइनल टेम्परेचर निकालने का ट्राई किया। फाइनल टेम्परेचर, ओके, हाउ डिड यू कैलकुलेट? सर NC डेल्टा T से। NC डेल्टा T, हाँ, Q is equal to MC डेल्टा T किया एंड M is proportional to N यहाँ पे, मतलब mass is proportional to number of सी को moles। नहीं, सी को क्या लिखेंगे फिर? सी लेकिन कट जाएगा ना, सेम गैस है, आइडियल गैस। नो, यू आर सेइंग कि वो जो सीवी ना, सीवी यू आर सेइंग, राइट? हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पर तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क डन भी होगा ना। अच्छा, मतलब उससे नहीं होगा क्या? ओके सर। सर उससे फिर लकीली आंसर सही आया ना, मतलब वो गलत है ना मेथड? वो तुम्हारा उससे आंसर आ रहा था। हाँ, पर शायद वो लकीली सही आया होगा, मतलब मेथड तो गलत लग रहा है अभी आपने बोला था। सर वो वीकली कंडक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। वीकली कंडक्टिंग मतलब धीरे धीरे कंडक्ट कर रहा है, और अल्टीमेटली फाइनली जो है स्टेडी स्टेट में दोनों साइड का टेम्परेचर तब तक कंडक्ट करता रहेगा जब तक दोनों साइड का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। क्योंकि अभी 400 300 तो कंडक्टिंग होता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों साइड का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अच्छा, तो उसका सिग्निफिकेंस मतलब क्या है? स्लोली, स्लो प्रोसेस, सडनली नहीं होगा, जो भी है धीरे धीरे करके अचीव होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सो इन द इनिशियल केस आपको P1 सेम कैसे आया ऑन बोथ साइड्स? so initially they are saying कि initially the gas in the beginning क्या दिया है? In the beginning the temperatures are parts A and B are 400 and 100 Kelvin respectively. The separator slides to a momentarily equilibrium position. Okay sir, yes sir, I didn't see that, I'm sorry. Yes sir. One minute guys, हाँ एक मिनट मार्क कर। guys after उसके बाद next question. इसमें how do you do the next one? You the final notes, okay. तो मतलब
तो ये वाला क्वेश्चन के लिए हाँ मतलब लेफ्ट साइड का मोल्स कंजर्व किया जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था. यस, लेफ्ट साइड का इनिशियल एंड फाइनल एंड राइट साइड का इनिशियल फाइनल. वी गॉट टू इक्वेशंस और उसमें डिवाइड कर दो तो गेट द आंसर. ऐसे निकाला था अभी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. Yarka, what's the next question? So, a vessel of volume V0 contains an ideal gas at pressure P0 and temperature T. Gas is continuously pumped out of this vessel at a constant volume rate dV by dt equals R, keeping temperature constant. Pressure of the gas being taken out equals the pressure inside the vessel. Find pressure as a function of time or time taken before half the original gas is pumped out. Okay. Temperature remains constant. फिर आप इसको इतना ये कर रहे हो, फिर ये इसको डिस्कार्ड कर देना है ना. Gas is continuously pumped out of the vessel at a constant volume where dV by dt is R, keeping the temperature constant. The pressure of the gas being taken out equals to the pressure inside the vessel. Okay, तो उसको ऐसा सोच सकते हैं ना, सिरिंज इंजेक्शन सिरिंज की तरह से इनिशियली ऐसा था, फिर आपने इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दिया dV, फिर पूरा प्रेशर जैसे इनिशियली से at any instant the pressure is P, volume is some V0. फिर आपने क्या किया, इसका वॉल्यूम बढ़ा लिया V0 प्लस dV और प्रेशर भी ये कम हो जाएगा, P प्लस dP, dP विल बी नेगेटिव. और फिर जो ये वाला पार्ट है थ्रू प्रेशर सेम है, फिर इसको नेग्लेक्ट कर दिया. अब प्रेशर चेंज हो गया, यहाँ का प्रेशर हो गया P0 माइनस dP और वॉल्यूम V0. फिर नेक्स्ट स्टेप सेम थिंग ऐसे करते जा रहे हो, राइट. फिर बढ़ाया, फिर इतना पार्ट फिर डिस्कार्ड कर लिया, ऐसा करते जा रहे हैं. रेस कैसे करेंगे अब यहाँ पर? ओ नहीं, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर गैस को हम मतलब रिलीज करते जा रहे हैं, इजेक्ट करते जा रहे हैं, और ये भी दिया हुआ है the pressure of the gas being taken out equals the pressure inside the vessel. हाँ, तो उसको कैसे सोच सकते हैं कि you have a syringe और तो इस syringe में जो है what you have done is यहाँ पे ये गैस ऐसा ये फिल किया, उसको थोड़ा बाहर पुल किया, जितना वॉल्यूम आपको निकालना है, से dV वॉल्यूम you want to eject out, इतना निकालना है. तो अभी पूरे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V0 प्लस dV. तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर कम हो जाएगा, dP नेगेटिव आएगा, dP नेगेटिव आ जाएगा. अब जो है तो अब हाँ ये पूरा थ्रू आउट द प्रेशर यूनिफॉर्म हो गया, P मतलब P प्लस dP, dP इज नेगेटिव. अब इतने पार्ट को आपने इजेक्ट कर दिया, तो दिस इजेक्टेड गैस इज सेम एट द प्रेशर व्हिच इज इनसाइड थ्रू आउट. तो कैसे करेंगे यहाँ पर, और ऐसे इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली रिपीट करते जा रहे हैं. तो उसके बाद सेम फिर वही अप्रोच. अब नया प्रेशर आ गया, P0 dP नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, P0 प्लस dP where dP will be नेगेटिव. फिर अगेन फिर उसको वॉल्यूम बढ़ाएंगे, फिर और प्रेशर और थोड़ा कम होगा. इस तरीके से प्रेशर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है. सर हाँ सर, आप इधर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं सर? बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है कि गैस इज कंटिन्यूअसली पम्प्ड आउट. हाँ, एंड ये भी दिया हुआ है कि ये भी दिया हुआ है द प्रेशर ऑफ द गैस being taken out equals the pressure inside the vessel. Yes. तो हम इस पंपिंग प्रोसेस को ऐसा सोच सकते हैं, pumped out. इनिशियली ऐसा था,
आपको थोड़ा सा गैस निकालना है, मान लो डीवी गैस बाहर निकालना है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ा लोगे, ओके प्रेशर जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, P प्लस डीपी, डीपी नेगेटिव आ जाएगी। ओके 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 और फिर क्या करो, थ्रू आउट प्रेशर जब सेम हो गया, यहाँ का पूरा प्रेशर सेम हो गया, फिर इतना पार्ट को डिस्कार्ड कर दो। मतलब काट दो। हाँ, उतना पार्ट हटा दो अच्छा गैस अच्छा से, ओके ओके सर। है ना। तो उस तरीके से आप गैस को कंटिन्यूसली बाहर निकालते जा रहे हो। The pressure of the gas being ejected out is same as the pressure of the gas in the vessel. इसके बाद कैसे करेंगे अब? सर तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है वो कंटेनर का? नहीं, जैसे इस स्टेट और इस स्टेट के बीच में देखते हैं, तो इस स्टेट और इस स्टेट के बीच में कौन सी क्वांटिटी कंजर्व्ड है? नो सर, कंजर्व नहीं बोल रहा हूँ मैं, वॉल्यूम ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है कंटेनर का। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल ना, ऐसे करेंगे तो अच्छा क्या वो वैसे ही रहेगा ना। तो आप क्या करो, किसी इंस्टेंट पे ऐसे हो तो आप बोल सकते हो कि इस स्टेट और इस स्टेट में क्या कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट। यस सर। So moles constant, temperature constant, you can write between this state and this state, क्या लिख सकते हो, P1 V1 equal to P2 V2, है ना। हाँ सर। तो P into V naught, P plus dP into V plus dV, dP नेगेटिव आएगा। अब इसको ओपन करोगे, P V naught plus dP V naught plus P dV plus dP dV, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाला और ये तो गया। अब dP into dV, सर आप वो डायग्राम्स वापस दिखा सकते हो सर, आपने ऊपर इरेज कर दिया। तो वो सेम यही वाला चीज फिर से रिपीट करना है, यही वाला चीज फिर से रिपीट करना है। नया जो प्रेशर हो जाएगा, फिर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना है, फिर डिस्कार्ड करना है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर वो P प्लस DP मतलब थोड़ा गैस निकालने के बाद वाला प्रेशर है क्या? यस 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 सर पर नहीं मतलब नहीं देखो, नहीं यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक आपके पास गैस है, फिर आपने क्या किया, सिरिंज जैसा होता है ना, उसको पीछे खींचते हैं। हाँ तो उसको आपने पीछे खींचा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा ना थ्रू आउट। अच्छा ओके सर, पर क्वेश्चन में वैसा दिया है कि बस गैस बाहर निकाल रहे हैं। हाँ नहीं वो, लेकिन क्वेश्चन में ये भी दिया है ना, द वॉल्यूम ऑफ द गैस बीइंग इंजेक्टेड आउट इज सेम एज द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द वेसल। तो आपको तो ये दोनों का इंश्योर करना, प्रेशर सेम है। हाँ तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा गैस के थ्रू आउट अंदर प्रेशर जो है सेम है। ओके ओके सर। हाँ, फिर अब कैसे करोगे इसके बाद? अब देखो डीपी, देखो ये टर्म्स कैसे हैं, डीपी इंटू वी नॉट है, पी इंटू डी है, लेकिन ये दोनों डी वाले टर्म्स ये हट जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस डीपी इंटू वी नॉट इज इक्वल टू पी इंटू डीवी, फिर डीपी अपॉन पी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीवी अपॉन वी नॉट तो कांस्टेंट है। तो अब है ना, ये अंडरस्टूड यहाँ तक, ये स्टेप, इसके बाद से ये वाला स्टेप ये सर करना। ये सेकंड से थर्ड स्टेप वो डीपीडीवी कैसे गया, मेरे को ये नहीं समझा। देखो ये जैसे डीपी इंटू वी नॉट है, ये देखो एक डी वाला क्वांटिटी है और एक नॉर्मल वाला क्वांटिटी है, डी मतलब वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे बोथ आर वेरी स्मॉल, तो दोनों का प्रोडक्ट और छोटा हो जाएगा, उसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव। थैंक यू सर। आप देखो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आपको ये वाला यूज करना है ना, dt से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ तक।
अब जो है यहाँ पे क्या गया, ये वाला जो है इसको P और dV by dt इज R नॉट रेट, मतलब ये हो गया dP into V नॉट, मतलब ये क्या बन गया माइनस dP by P इज इक्वल टू R नॉट by V नॉट dt, या माइनस साइन को इधर कर देते हैं। अब इसको इंडिकेट करते हैं, लिमिट्स T इक्वल टू 0 पे प्रेशर इज P नॉट, एट एनी टाइम T से द प्रेशर इज P, इसका इंडिकेशन क्या आएगा ln ऑफ P by P नॉट, और यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस R नॉट बाई V नॉट इंटू T, फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e टू पावर माइनस R नॉट बाई V नॉट T इज P by P नॉट। सर हाँ सर आप एक बार बता सकते हो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होएगा? वॉल्यूम, हाँ नहीं, यहाँ पे दिया है कि गैस इज कंटिन्यूसली पम्प्ड आउट, और ये भी इंश्योर किया है कि पंपिंग आउट इज डन, द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द वेसल इज सेम एज द प्रेशर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस व्हिच इज बीइंग पम्प्ड आउट। हाँ ओके सर ओके। तो उसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा सिरिंज जैसा लिया, एक सिरिंज, उसको थोड़ा सा, एक वेसल था इसके पीछे एक इमेजिनरी ऐसा सिरिंज लगाया, डीवी वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो अब नया गैस का वॉल्यूम हो गया V नॉट प्लस डी, प्रेशर कम हो जाएगा, फिर ये डीवी वॉल्यूम को डिस्कार्ड कर दिया। गाइस यू ऑल अंडरस्टूड? तो हमें प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना था, तो हम वो माइनस dP V नॉट इक्वल्स P dV को पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय dt करके dP बाय dt मिल रहा था, तो ये लॉन वगैरह आते ही नहीं, ऐसे नहीं कर सकते सर। लेकिन ना हमें जो है वॉल्यूम के बारे में डीवी है ना, वो वाला हाँ। हमें आर नॉट यूज करना है ना, रेट। हाँ वो R दिया हुआ है वही ना। हाँ रेट यूज करना है, टाइम मतलब टाइम को लाना पड़ेगा, इसलिए हमने dt से मल्टीप्लाई किया। सर नहीं, मैं ये कह रही थी कि जो आपने dt से मल्टीप्लाई किया है उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो dP बाय dt आ जाता है ना, तो हमने पूरा इतना इंटीग्रेशन वगैरह क्यों किया? नहीं, dP बाई dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर आया, लेकिन हमें तो प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। ओह ओके सर, नाउ आई गॉट इट। सर एक्चुअली मुझे ये डाउट था कि हम लोग ने P माइनस डी क्यों नहीं लिया? नहीं सर क्योंकि प्रेशर तो कम हो रहा है ना। हाँ नहीं, डीपी नेगेटिव आ जाएगा ना, अपने आप आएगा, देखो वही आया हमारे पास, डीपी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे सॉल्व करने पे वही आ जाता है, हमारा रिलेशन जो है सेम वही आया, जीरो इज इक्वल टू डीपी वी नॉट प्लस पी डी वी, इसको इधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव आ रहा है। हाँ सर समझा। उसमें व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन निहारिका? Sir, 1 minute. हाँ, 1 mole of an ideal gas undergoes a process. एक इक्वेशन दिया था P equals. Thank you. सर Yes, हाँ सर यहाँ पे हम डीपी नेगेटिव मतलब स्टार्टिंग में P माइनस डीपी क्यों नहीं ले रहे हैं? वो एक्चुअली जो है कैलकुलस में ना, जैसे जब भी लेते हैं कुछ एक इंक्रीज ले रहे हैं तो जैसे x तो x के डायरेक्शन में x प्लस dx वैसा लेते हैं, अपने आप ही वो नेगेटिव आ जाता है। याद है आपने वैसा भी किया होगा एग्जाम, सर्कुलर मोशन में फाइंड द टेंशन इन द रोटेटिंग रॉड,
तो सर ने कराया होगा x फिर x plus dx, हाँ यस सर हाँ x plus dx टेंशन t, t plus dt. ओके हाँ टेंशन डिक्रीज हो रहा है ओके हाँ ऑल्दो डिक्रीजेस, लेकिन t plus dt लिखते हैं अपने आप नेगेटिव आ जाएगा. हाँ यस यस सर इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी है. सेकंड पार्ट भी है क्या? एक तो सेकंड पार्ट क्या था इसका? Find the time taken before half the original gas is pumped out. Okay. कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर? When half the gas is pumped out, moles half अब जो है एक मिनट क्या इक्वेशन है, P naught is nRT naught for the volume of the gas which is inside the container. अब जो है ये कांस्टेंट है, तो मतलब आप हाफ इसको कम करना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? When half of the gas has been pumped out, the pressure will decrease to प्रेशर कितना हो जाएगा? P naught by 2 ना? सर बट हमने तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंजिंग लिया है ना, तो वॉल्यूम नहीं कांस्टेंट क्यों है? नहीं देखो, सपोज जो है आपका मतलब ये है, ये कंटेनर और ये वाला कंटेनर ऐसा, हाँ, वॉल्यूम V नॉट, टेम्परेचर T नॉट, यहाँ पे P नॉट N नॉट मोल्स. अब यहाँ पे आधे हो जाने चाहिए मोल्स. ये सर अगर वॉल्यूम वी नॉट लेंगे तो समझ में है, बट वो वॉल्यूम हमने वी नॉट प्लस डीवी लिया है ना. ओ नहीं, V नॉट प्लस डीवी क्यों लिया? क्योंकि हमें उसको इजेक्शन कराना था, गैस को मतलब हटाना था, और ये कंडीशन भी फॉलो करानी थी कि जो है the volume of the gas being ejected out is same as the pressure of the gas inside the vessel. तो इसलिए हमने क्या किया, एक सिरिंज से इसका वॉल्यूम थोड़ा सा dV बढ़ाया, P प्लस dV, फिर इसको कट कर दिया, ये वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर दिया, ताकि यहाँ का प्रेशर सेम रहे. वॉल्यूम ऑफ द गैस बीइंग इजेक्टेड आउट इज सेम एज द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द वेसल. फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर अगेन इसको थोड़ा सा dV इंक्रीज किया, ऐसे करके हम उसको रिमूव करते जा रहे हैं. ठीक है, ये अंडरस्टूड ना? Sir, yes, the pressure of the gas being ejected out is equal to pressure of the gas inside the vessel, right? ऐसा आपने कहा. yes. तो सर वो आपने कौन से इक्वेशन में वो यूज किया, मतलब वो आपने assume किया? अगर देखो यहाँ से अगर मान लो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ से जब यहाँ पे आए तो dV आपने dV बढ़ा दिया. अब जो है dV बढ़ा दिया तो थ्रू आउट द प्रेशर कितना हो गया? P प्लस dP हो गया थ्रू आउट. हाँ, P प्लस dP हो गया पूरे हर जगह का, यहाँ का, और फिर dV पार्ट को इजेक्ट कर दिया. तो dV पार्ट को इजेक्ट करते वक्त क्या है, इधर का प्रेशर चेंज नहीं हुआ, यही रहा. हाँ सर, तो वो उसका यूटिलाइजेशन वहाँ पे हुआ. लेकिन सर यहीं बट वो यहाँ से dV इजेक्ट कर रहे होते तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता, कंटिन्यूअसली चेंज होता. हाँ सर, बट वो V नॉट प्लस dV ये गैस का वॉल्यूम है ना, इसका कंटेनर का वॉल्यूम नहीं कह रहे हो ना यहाँ पे? हाँ मतलब हम तो आइडियल गैस इक्वेशन तो गैस पे ही अप्लाई कर रहे हैं ना. ओके सर. सर तो इसको सॉल्व करने का कोई और मेथड नहीं है? और कोई मेथड क्या? नहीं मतलब मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये समझ में आया मुझे. और ट्राई करते हैं बच्चा, और देखते हैं फिर और कुछ होता है तो मैं. हाँ ओके सर. और कुछ करते हैं, लेट्स डू मोर सम्स. हाँ अब जो है गाइस वाला करो 38, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन? ओके हाँ we haven't got all that part. I will raise this one. Vishnu copied. Yes sir. भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कर रहे हो उसको बताओ. So can you wait for some time? Sure. I will write the data
This is question number 9 की 8 वेदांत रुको अभी। दिस क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, कौन सा पीडीएफ में कौन सा क्वेश्चन नंबर है? Sir, may I say? I understood. यस Sir, नहीं ninth क्वेश्चन वाला नंबर ना? नहीं, क्वेश्चन नंबर डोंट टेल। हाँ क्वेश्चन नंबर Ninth. 9। हाँ डोंट टेल। हाँ एक मिनट जाओ, सबको ट्राई करने दो एक बार। अच्छा, okay, sir. ओके जिष्णु, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट वन। Sir, wait, I have still had to write. I just clicked the idea. ओके सर जो लास्ट क्वेश्चन था सर, आपने वो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा था सर, वो छोटे स्पेस में? लेफ्ट हैंड साइड में छोटे स्पेस में क्या लिखा था? सर पी बाई पी नॉट ऐसे कुछ आप लिख रहे थे उधर। वो था ना, वो इक्वेशन था p by p naught is equal to e to power minus r naught by v naught, ऐसा था शायद ना, ये था। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? p naught e to power minus r naught d by v naught। यस सर, अच्छा हाँ ओके। Okay. Harshitanshu, how will you do this one? 9. Shivansh? Sir, we'll write T is equal to PV by NR and then substitute V as V naught. Okay, तो v as v naught रखा, n की वैल्यू 1 रखी, p कहाँ से आएगा भाई? Given Oh, p as v naught. तो इससे ये वेट, ओके v as v naught रखा तो ये p by 2 आता। Next question. I will erase this one. Next is 10. Sir? Yeah. Sir, in ninth one, I didn't understand how they got mole inverse. So because I got answer as P naught V naught upon 2R. वो नहीं, टेम्परेचर है ना, और मोल्स वाला टर्म नीचे आ रहा है ना शायद। क्या हुआ सर? लाइक ये टेम्परेचर में क्या आ Yes, sir, जाएगा? N is equal to 1. हाँ सर। n equal to 1 ना? सर मैंने एक्चुअली वैसे नहीं किया। मैंने कैसे किया कि वो P का तो एक्सप्रेशन दिया था ना, P इज इक्वल टू P नॉट अपॉन 1 प्लस V अपॉन V नॉट द होल स्क्वायर। तो मैंने P को ही NRT अपॉन V लिया, NR को राइट हैंड साइड में मतलब डिवाइड किया एंड V को न्यूमरेटर में लाया। तो वैसे हम मुझे
टी में एक्सप्रेशन आराम से मिल गया। ओके हाँ नहीं यही किया तुमने, जैसे 1 को मोल रखा और टी, तो इसको क्या लिखेंगे, बी नॉट बाई 2t टी ऐसा डिनोमिनेटर में कैसा आएगा? nRT क्या ऐसा? हाँ 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 और इसको लोगों ने ऐसा लिखा है क्या? हाँ सर, मोल इनवर्स लिखा है। मोल इनवर्स क्यों लिखा वो नहीं समझा। नहीं ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ मतलब पी नॉट बाई 2r ये करेक्ट है। हाँ ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट सर वो मोल इनवर्स तो आर के वजह से है ना, क्योंकि आर इंटू मोल इनवर्स फिर वो कट जाएगा मोल। एक मिनट क्या क्या आर का यूनिट, हाँ आर के यूनिट में पर मोल आता है ना, तो मोल पर मोल कट जाएगा ना, इसीलिए मोल इनवर्स शायद लिखा है उन्होंने। सर निकाला है। हाँ हाँ सर क्लास कितने बजे तक है आज? रुको अभी करते हैं ना ये वाला सम, ओके वाला सर, सॉरी 10th वाला करो। ओके सर। 10th वाला कैसे किया? ये ओके ओके हाँ ओके 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 कॉन्सेप्ट्स में हाँ KTG NLM somebody send the message, क्या मैसेज था प्लीज सेंड। होमवर्क हाँ यू गाइस स्टार्टेड ना, प्लीज कंप्लीट हाँ उसमें एज सून एज पॉसिबल जितना हो जाए। कल तुम ये पहले का होमवर्क था तो प्लीज होना चाहिए था जल्दी। Could you please give the homework, the more homework after the next doubt lecture, because right now we have a lot of homework to complete. ओके ठीक है, तो कल के लिए मतलब नेक्स्ट डाउट लेक्चर के बाद होमवर्क दूं क्या? ओके हाँ सर, आज मत दीजिए। थैंक यू सर। सर मोरोवर काफी होमवर्क के डाउट्स भी लेना बाकी है, तो वो हो जाए उसके बाद अगर ये आप होमवर्क दो तो थोड़ा कन्वीनियंट पड़ेगा। ओके 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 सो जो कल की क्लास में ऑलरेडी जो पिछले दिए हुए होमवर्क्स हैं दैट वी कैन डिस्कस। फेयर इनफ। हाँ मतलब जो पहले प्रीवियस होमवर्क्स कैन वी डिस्कस टुमारो वी हैव डाउट है ना? Sir, Can we discuss tomorrow you are discussing papers, empty papers. ओके हाँ एमटी का भी करना है। सो
For ठीक है empty, there are very less questions. It will barely take any. ओके ओके ठीक है तो ठीक है तो सर आप empty कल को वो एमटी के करवाने वाले हो ना, वो आपने बोला था कल लास्ट में पेपर टू ओके ठीक पेपर है और तो उसके मेंस के रे ठीक है ऑप्टिक्स। ओके उसके पहले कि आपके हाँ यू सेड कि अराउंड 10 क्वेश्चंस were there ना ओके ठीक है तो 10 क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस जो भी है उसका डिस्कस कर लेंगे एंड उसके बाद कैन वी हाँ गाइस प्लीज टेल कि कल कौन कौन सा होमवर्क डिस्कस किया जा सकता है कौन सा पॉसिबल जो प्रीवियस होमवर्क्स में से कौन कौन सा कर सकते हैं निदान बस एक सर मिनट ये लास्ट जरा कर एक मिनट जाओ चलो ठीक है मैं ये डिस्कस कर ये वाला कर देता हूँ हाँ गाइस हाँ बताओ इसका कैसे किया निहारिका हाउ डिड यू डू दिस वन So I'm not understanding this question only. एक मिनट what is the initial temperature 300 300 and final is 600. okay or initial what is the initial pressure Pressure, it's not given. initial pressure is not given 1 atm sir. okay initially is 1 atmosphere ठीक है Yeah, sorry. initially is P naught हाँ फिर बाद में वॉल्यूम V naught temperature you have doubled moles conserved temperature doubled PV is nRT है ना so ये कंजर्व्ड है और इसको आपने डबल किया ये भी वॉल्यूम में कांस्टेंट तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा ओके सो नाउ द प्रेशर तो बिकम्स 2 atm हो जाएगा। 2 P naught हाँ तो ये तो हो गया KTG का कंसेप्ट अब न्यूटन्स लॉ की कंसेप्ट लगाते हैं सर न्यूटन्स लॉ तो से हाँ सर वो लीड पे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा 2 p नॉट इनटू a मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। और फ्रिक्शन किस साइड आएगा फ्रिक्शन फ्रिक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द लीड। हाँ सर। ओके ये फ्रिक्शन आ जाएगा तो यू कैन राइट तो F force of the gas is equal to force of the atmosphere plus friction. So Force of the gas. piston is moving, right? Yes, this is about to move out. How can we take that volume to be constant? Oh, no, it is about to pop out. So just in equilibrium. Oh. हाँ. सर वो आपने क्या लिखा है सर F ये F of the gas, force of the gas. नहीं सर वो नहीं सर वो उसके वो वाले साइड पे राइट साइड पे फ्रिक्शन एटमॉस्फेयर अच्छा अच्छा एटमॉस्फेयर ये वाला 2 P नोट है is P naught into area plus friction so you get P naught into area as friction है ना और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा mu into n फ्रिक्शन will be mu into n है ना तो ठीक है भाई अभी आपको क्या निकालना है ठीक है तो you will write P naught into area is friction की वैल्यू क्या है mu into n and you want to P naught a by mu is n आपको अब ये n किस रीजन में लग रहा है इसके सरकमफ्रेंस में तो n by 2 pi r P naught a by mu और 2 pi r this is normal reaction per unit length dn by dl तो dn by dl ये वाली वैल्यू P naught एरिया इज हाउ मच इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा pi r square अब mu 2 pi r mu 2 pi r pi cancel r cancel so dn by dl will be कितना हो जाएगा p naught by 2 mu p naught r by 2 सर यस हाँ सर आपने वो P नॉट A by mu is n उसके बाद वाले स्टेप में क्या किया सर फिर दोनों साइड लेंथ से डिवाइड किया मतलब जिस नॉर्मल रिएक्शन जिस रीजन में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लग रहा है इस पूरे सरकमफ्रेंस में लग रहा है हाँ सर तो सरकमफ्रेंस का लेंथ क्या हो जाएगा 2 pi r हाँ तो दोनों साइड 2 pi r से डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मारा और सर आपने वो dn by मतलब उसका वो जो आपने किया वो dn by dl से इक्वल है वो कैसे पता दिस इज नॉर्मल रिएक्शन पर यूनिट लेंथ अच्छा अच्छा हाँ हाँ ओके सर ओके और सर वो आपने उधर कैंसिल नहीं किया है ना वो बस कांस्टेंट है वैसा बताया ना
yes हाँ The अब PV naught is nRT. So हाँ हाँ yes हाँ ये टेम्परेचर 300 से 600 गया तभी वॉल्यूम कांस्टेंट था क्या? yes between 300 to जैसे ही 600 से डेल्टा ज्यादा होगा it pops out. हाँ पर 300 to 600 जाने में वॉल्यूम कांस्टेंट था. yes correct 600 पे वो स्लिपिंग स्टार्ट होता है. सर हाँ सर इधर कॉर्क का थिकनेस हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं. कॉर्क का थिकनेस का यूज क्या है? यूज तो नहीं होगा ना? नहीं मतलब यूज तो नहीं होगा पर वो क्या बोलो अभी नॉर्मल फोर्स पे उसके वजह से उसके थिकनेस के वजह से कुछ अफेक्ट नहीं होएगा. नहीं हमने तो एफ ले लिया फ्रिक्शन फोर्स को नेट और एफ को म्यू एन बोल दिया. हाँ सॉरी सर उधर नहीं इफेक्ट पड़ेगा पर सर आपने वो 2 पाई आर लिया है ना तो उधर 2 पाई आर इंटू उस कॉर्क का थिकनेस नहीं होना चाहिए मतलब. नहीं उन लोगों ने बोला है नॉर्मल रिएक्शन पर यूनिट लेंथ बोला है. अच्छा तो लेंथ इज पेरीमीटर उसका पेरीमीटर जो है 2 पाई आर. सर और एक लास्ट डाउट था सर इधर जो आपने फर्स्ट रिएक्शन लिखा ना एफ गैस इज इक्वल टू एफ एटीएम प्लस एफ फ्रिक्शन तो उधर आपने वो मतलब ये लिमिटिंग ये केस लिए ना आपने. yes limiting case just it is just about the problem. थैंक यू सर. जो है इसमें आंसर आ रहा है ना फिर इससे? ठीक है गाइस फिर हाँ कल होमवर्क कहाँ तक डिस्कस कर सकते हैं प्लीज टेल. कौन सा कर सकते हैं जो पुराने होमवर्क्स में? या प्लीज अनम्यूट एवरीबॉडी. कल होमवर्क कहाँ तक हो सकता है जो मैंने पुराने जो दिए हुए हैं कैलोरीमेट्री या कैलोरीमेट्री. सर आपने किधर तक डिस्कस किया मतलब मैं लास्ट वाले क्लास नहीं आ पाया था तो सर वो फर्स्ट वाले का तो आपने रिकॉर्डिंग भेजा था जो आपने 4 होमवर्क दिए थे फिर लास्ट सर उसका रिकॉर्डिंग है क्या? किधर तक आपने भेजा था सर? मैंने रिकॉर्डिंग तो नहीं होमवर्क तो अपन ने शायद कैलोरीमेट्री तक कर लिया था शायद ना. मतलब सर सेकंड या थर्ड का आपने रिकॉर्डिंग भेजा था. फर्स्ट का रिकॉर्डिंग था सर और अभी टोटल में 4 है तो सर आपने सेकंड थर्ड और फोर्थ में से कितना डिस्कस किया? हाँ प्लीज टेल कहाँ तक? सर हमने एक्सरसाइज 1 और 2 कर लिया था आई थिंक सो कैलोरीमेट्री का. हम उसका कल एचसीवी कर लिया. ओके यू गाइस हैव डन क्या? हाँ ठीक है. नहीं पहले तो बुकलेट आपने कभी बोला नहीं बुकलेट नहीं पहले बुकलेट पहले बुकलेट हो गया क्या पूरा जो मैंने दिए हैं बुकलेट जो है थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री के पूरे रह गए. हाँ सर वही पूछा सर आपने लास्ट टाइम किधर तक करवाया था सर वो 4 होमवर्क आपने टोटल में दिए थे. 4 एक्सरसाइज 3 and 4 are left in chapter 1 and 2 were done. ओके सर एक्सरसाइज 1 में डाउट्स है. ठीक है फिर अपन वही पुराने वाले ही करते हैं गाइस है ना. सर आप वापस करने वाले हैं? हाँ कुछ स्टूडेंट्स शायद पहले नहीं कर पाए थे तो ठीक है. एचसीवी गाइस मैंने आपने दिया था सर 11 से 22 दिया था एक बार दिया फर्स्ट वाले होमवर्क में. ठीक है गाइस अगर कि इफ यू गाइस आर कंफर्टेबल देन वी कैन डिस्कस इफ यू हैव डन. तो सर आप वो फर्स्ट वाला ही होमवर्क जो आपने जिसका रिकॉर्डिंग भेजा था वही डिस्कस करवा रहे हो? हाँ मतलब अभी तक जितने होमवर्क मतलब सर आप दोनों करोगे ना वो पहले वाला और एचसीवी दोनों करोगे? ठीक है चारों जो पहले मैंने दिए पुराने होमवर्क ही करेंगे. मतलब सर पूरे होमवर्क में से किधर से भी कुछ भी चलेगा ना? चलेगा ठीक है पुराना वाला ही. हाँ सर वो रिकॉर्डिंग वाला ना. ओके सर. सर तो अभी तक जितना दिया है बुकलेट में से वो उसका कल डिस्कशन है ना? ओके शिवांश उसका नहीं मतलब अभी वो क्या डिसाइड हुआ मैं समझा नहीं. नहीं वो लोग कह रहे हैं कि पूरा अभी तक जितना मैंने जो 4 पिक्चर्स दिए थे उसी वही वाला करना. अच्छा इंक्लूडिंग एचसीवी? इंक्लूडिंग सर एचसीवी का लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा ना तो एचसीवी क्या हो पाएगा मतलब सर कल ऐसा करेंगे पहले बुकलेट का देख लेंगे और फिर टाइम रहेगा तो एचसीवी कर लेंगे. ओके ठीक है सर तो उसको बुकलेट में फर्स्ट वाला स्लॉट भी चलेगा ना सर जिसका आपने रिकॉर्डिंग बहुत पहले भेजा था?
वाला तो अगर फिर भी प्रेफर करूंगा कि अपने एक बार कर लो तो अच्छा है ना, ताकि तुम अच्छा ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। मैं अगर सर उसमें डाउट है तो फिर पूछता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ओके उसको एक बार देख। सर हाँ सर आप एक बार ये लास्ट इक्वेशन एक्सप्लेन कर सकते हो? श्योर ये वाला ना सर, क्लास ओवर। हाँ सर, यहाँ से। हाँ क्लास इज ओवर प्लीज। हाँ थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर। सर जहाँ पर आपने Thank you, 2 sir. पाई आर मल्टीप्लाई Bye, sir. डिवाइड किया है। हाँ देखो यहाँ पर क्या किया हमने, हमारा नॉर्मल रिएक्शन आ गया। आवर हाँ इंटरेस्ट इज टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन पर यूनिट लेंथ। हाँ तो सर। भाई नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लग रहा है, इसके पेरिफेरी पे लग रहा है ना। तो हाँ इस पेरिफेरी का लेंथ, हाँ, उससे डिवाइड कर लेते हैं, और इसका लेंथ इज हाउ मच, 2 पाई आर। अच्छा ओके सर। सो डिवाइडिंग बोथ साइड, हाँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर इधर भी डिवाइड किया, 2 पाई इधर भी डिवाइड किया। This becomes normal reaction per unit length, dn by dn. ओके सर। So dn by dn is p naught a by mu 2 pi r. p naught a को मैंने लिख दिया pi r square. ओके सर, गॉट इट। थैंक यू सर। I cancel, r cancel, p naught r by 2 मिल गया। ओके सर। ओके गाइस, फिर प्लीज हाँ कल के लिए होमवर्क के लिए थोड़ा अटेम्प्ट करके लाना है। ठीक है, ऐसे आज नहीं करते हैं। थैंक यू वाला, बाय। किसी कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। ओके, किसी को कुछ नहीं है। So I will close this, huh? Thank you all.